नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत और मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि वस्सव्वरकुम फ़अहसना सव्वरकुम अलैहिम मसीर व यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व यअलमु मा तुसिरून व ला तुलिनून वल्लाहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु व कलाम थोड़ा जाके हो थोड़ा जाके सय्यदना व नबिय्यना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद الذي كلا بشانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي كلا بشانه لولا كان ما خلقت الفلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلی علی محمد و ورحمة الله على أصحابهم وصحابهم وشيعتهم ومحبهم وموالهم أجمعين ولعنة الدائمة الأرضية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم على قيام يوم الدين سبحان اللہ فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلوات فريق صلی علی محمد و علی محمد ذرا خالی جگہ ہے، اگر دو دو قدم آگے آ جائیں گے تو مجلس کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، علی حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مرد آباد بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان کی یہ سب اعضاء اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جتنے مومنین و مومنات جتنے قدم چل جائیں ہیں، پروردگار ہر قدم کے صدقے آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا ان کو اولاد نورین عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں مولا ان کو باعزت روزگار عطا فرمائے۔ انکل اقبال کے گھر سے میرے ذمہ دعا ہے، پروردگار ان کے گھر سے مصیبتوں کو دور فرمائے۔ ہماری سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، مولا ہمارے والی برحق امام محمد مہدی اجل اللہ فرجہ کا جل ضرور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے۔ صلی علی محمد و علی محمد عزیزان محترم، جب بھی ذکر حسین میں دعا مانگی جائے تو آمین مل کے کہا کہیں، اس لیے کہ راحت کی خالی گود گواہ ہے کہ جو تقدیر سے نہیں ملتا وہ شبیر سے ملتا ہے۔ واہ واہ اجازت جناب باشا بسم اللہ صاحبان عقل و فہم، متمسکین باب العلم، مبالیان حیدر قرار، اس مقدس اور محترم مقام پر زندگی میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ آپ میرے انداز سے واقف نہیں لیکن میں آپ کی سماج سے واقف ہوں، واہ واہ وہ اس لیے کہ میرے استاد محترم علامہ ذائقہ عباس مجتبی صاحب ایک دفعہ ادھر آئے تھے، ان کے ساتھ آیا تھا اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑا اچھا سنتے ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ تعداد چاہے کم ہے لیکن سننے والے 5 ہی ہوں تو کافی ہوتے ہیں۔ مجھے آپ کی سماعت کا اعتبار ہے اور اسی اعتبار پہ میں پہلا جملہ کہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ سنیے گا تمہید کے لیے، بس 1 منٹ کے لیے۔ اور کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ ممبر سے تبلیغ نہیں ہوتی، واہ واہ تو بس 1 منٹ کی تبلیغ سنیے گا، اس کے بعد میرے پاس اتنا بڑا ولایت کا قصیدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ عزیزان محترم، مولا فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں رہو،
दुनिया तुम में ना रहे। वाह 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 कहने जो इसी इल्मी बात पे बोल रहे हैं, वाह 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 तुम दुनिया में रहो, वाह वाह दुनिया तुम में ना रहे। और मासूम फरमाते हैं कि जो इंसान नफ्स पे काबू कर ले वाह वाह वो फरिश्तों से अफजल हो जाता है, वाह वाह और जिस पे नफ्स काबू कर ले वो जानवरों से बदतर हो जाता है। वाह वाह अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान की इज्जत इल्म की बुनियाद पे होती है, इंसान की फजीलत इल्म की बुनियाद पे होती है, इंसान की बुलंदी इल्म की बुनियाद पे होती है। आदम को सजदा हुआ था क्यों? उसके इल्म की वजह से। आदम को सजदा हुआ था क्यों? उसके इल्म की वजह से। इसका मतलब अगर इल्म हो तो अल्लाह फरिश्तों से सजदा करवा देता है, इल्म ना हो तो दानिश्वर भी अबू जहल बन जाता है। मौला इन हाथों को सलामत रखे। इल्म ना हो। वाह वाह अज़ीज़ान मोहतरम, आप बेदार बैठे लेकिन फिर भी आपका मिजाज चेक करने के लिए एक जुमला कहूँगा, उसके बाद अपनी नौकरी शुरू करूँगा। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी के पास आए और आगे कहते हैं, ए नबी, आप सिर्फ नबी नहीं, नबियों के नबी हैं। आप सिर्फ सैयद नहीं, सैयदों के सैयद हैं। ए नबी, हर नबी का कोई ना कोई मौजज़ा था, आपका मौजज़ा क्या है? नबी कहते हैं, खुल के पूछ, क्या पूछना चाहता है ताकि ये भी समझें। कहता, सरकार मैं पूछना ये चाहता हूँ, फरिश्तों का आदम के सामने झुक जाना ये आदम का मौजज़ा था, मौत के तूफान से कश्ती बुझा के ले जाना ये नूह का मौजज़ा था, डंडे का अस्तहा बना देना ये मूसा का मौजज़ा था, लोहे को मोम कर देना ये दाऊद का मौजज़ा था, और पाँव की ठोकर से मुर्दा उठा देना ये ईसा का मौजज़ा था। सरकार आप तो नबियों के नबी हैं, आप तो सैयदुल अंबिया हैं, आपका मौजज़ा क्या है? मोहम्मद मुस्कुरा के कहते हैं, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे मोहम्मद बनाया, मेरे मौजज़े को अली कहते हैं। क्या बात है, इन हाथों में आप सलामत रहें। जवानी सलामत। वाह वाह मेरे मौजज़े को अली कहते हैं। अली कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब क्योंकि आपका मेयार बन गया है, एक जुमला सुनिए और जुमला मैं अपना वो बयान करने लगा हूँ, और खुशी से मिंबर से कह रहा हूँ कि बहुत से उलमा वो मिंबर से बयान करते हैं, वाह वाह लेकिन आज मैं मिंबर से कह रहा हूँ, बावजूद खड़ा हूँ, वो जुमला खालिस्तन आपके इस 2 टके के नौकर का है। वाह वाह सुभान अल्लाह। जुमला है, अज़ीज़ान मोहतरम, और मुझे पता है गर्मी है, लेकिन विलायत अली का नशा ऐसा नशा है अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम नशों से ये एक ही तो नशा है जो हलाल है, विलायत अली का। अब जुमला सुनिएगा कि जो मट्टी को हाथों में ले और परिंदा बना दे उसे ईसा कहते हैं। जागना जागना बहुत बड़ा विलायत का जुमला देने लगा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, जो मट्टी को हाथों में ले और परिंदा बना दे उसे ईसा कहते हैं। जो मट्टी को हाथों में ले और परिंदा बना दे उसे ईसा कहते हैं। जब तक तमाम मोमिन मेरे साथ नहीं मिल जाते मैं इसी जुमले को दोहराता रहूँगा। जो मट्टी को हाथों में ले और परिंदा बना दे उसे ईसा कहते हैं। जो मट्टी को हाथों में ले और परिंदा बना दे उसे ईसा कहते हैं। और जो मट्टी को हाथों में ले और जन्नत बना दे उसे बहलौल कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मिलका जी, जो मट्टी को हाथों में ले, बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात तो इससे आगे है। जो मट्टी को हाथों में ले और परिंदा बना दे उसे ईसा कहते हैं। जो मट्टी को हाथों में ले और जन्नत बना दे उसे बहलौल कहते हैं। पूरा पिंडाल कदमों पे आ जाए, दाद का हक अदा नहीं होता, बैठे बैठे बाबा कह दो असदाबाद राजी है। जो मट्टी को हाथों में ले और परिंदा बना दे उसे ईसा कहते हैं। जो मट्टी को हाथों में ले और जन्नत बना दे उसे बहलौल कहते हैं। और जो मट्टी को हाथों में ले और आदम बना दे उसे अली कहते हैं। वाह वाह सुभान जो अल्लाह। मट्टी को हाथों में ले वाह वाह और आदम बना दे उसे अली कहते हैं। यही तो वजह है, कहा जाता है ना कि शिया हर वक्त अली अली करते रहते हैं। इनके घर में खुशी हो ये अली अली करते हैं, इनके घर में गमी हो ये अली अली करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको बताऊं 24 घंटे का इबादत गुजार कौन है? वाह वाह। हम अली अली क्यों करते हैं इसकी वजह बताने लगा हूँ। आपको कोई 1 घंटे का इबादत गुजार मिलेगा, कोई 2 घंटे का इबादत गुजार मिलेगा,
کوئی 5 وقت کا عبادت گزار ملے گا؟ کبھی آپ نے 24 گھنٹے کا عبادت گزار سنا ہے؟ واہ واہ اگر جملہ میرا ہو آپ نہ بولے کوئی بات نہیں، نو پرابلم، میں آپ کو فرمان اپنے مولا کو سنانے لگا ہوں، اگر جملہ سن کے بھی آپ خاموش رہے تو قبر تک گلا رہے گا۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہماری ولایت رکھتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتا ہے وہ لیتا سانس ہے، اللہ لکھتا تسبیح ہے۔ اللہ جانے کون سمجھا میرا جملہ؟ کیا بات ہے ان ہاتھوں کی جو عزت علی کے لیے بلند ہو رہے ہیں؟ آخری بھائی تک مل کے بولے حیدری۔ جو ہماری ولایت کو تسلیم کرتا ہے وہ لیتا سانس ہے، اللہ تسبیح لکھتا ہے۔ ایک اور فرمان سنانے لگا ہوں، معصوم فرماتے ہیں المومن العارف لموالی علی عابد ان لم یعبد، واہ واہ سبحان کہ اللہ، ہماری محبت رکھنے والا، ہماری محبت رکھنے والا عبادت نہ بھی کر رہا ہو تب بھی عابد ہے۔ واہ 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 واہ، عبادت نہ بھی کر رہا ہو یعنی وہ جاگ رہا ہے، محبت دل میں ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ واہ 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 وہ سو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ وہ چل رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، جب تک زندہ رہے عابد ہے، مر جائے تو شہید ہے۔ واہ 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 واہ، آپ نے جملہ ایسے سن لیا کہ اسد عباس نے ہوا میں کہہ دیا کہ مر جائے تو شہید ہے، مولا کا فرمان ہے۔ عزیزان محترم، میری اپنے استاد محترم کی طرح ایک بڑی بھڑی عادت ہے، وہ عادت ہے کہ نام میں سا لینا بس تھکنا نہیں ہے، بس 2-4 منٹ کی نوکری ہے، پائی آ چکے ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ اسد عباس نے ہوا میں کہہ دیا کہ جو ہماری محبت رکھتا ہے اور مر جائے تو شہید ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، واہ 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 جو ہماری محبت رکھتا ہے اور مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، ایک بندہ حیران ہو گیا، ایک بندہ پریشان ہو گیا، معصوم کے پاس آیا، کہتا ہے سرکار یہ آپ کے نانا نے کیسا فرمان دے دیا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو ہماری محبت رکھتا ہے وہ مر جائے تو شہید ہے۔ مولا شہید تو وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے، مولا شہید تو وہ ہوتا ہے جو تلواروں کے زخم کھاتا ہے، مولا شہید تو وہ ہوتا ہے جو نیزوں کے زخم کھاتا ہے، مولا شہید تو وہ ہوتا ہے جو تلواروں سے مارا جاتا ہے، مولا شہید تو وہ ہوتا ہے جو بھوک برداشت کرتا ہے، مولا شہید تو وہ ہوتا ہے جو پیاس برداشت کرتا ہے۔ مولا وہ کیا ہو گیا، یہ کیا مسئلہ ہو گیا کہ ایک میدان میں ہے، ایک گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی شہید ہے یہ بھی شہید ہے، کیسا فرق آ گیا؟ مولا مسکرا کے کہتے تم سمجھتے ہو کہ جنگ کرنا مشکل ہے؟ کہتا جی مولا۔ کہتا تم کیا سمجھتے ہو کہ جنگ کرنا مشکل ہے؟ تو ہماری محبت کون سا آسان ہے؟ نہیں سمجھے نہیں پہنچے اس جملے کا۔ جنگ کرنا مشکل ہے تو ہماری محبت رکھنا بھی آسان نہیں ہے۔ وہ نیزوں سے مارا جاتا ہے، یہ فتووں سے مارا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ان ہاتھوں کی جو عزت علی کے لیے بلند ہو رہے ہیں۔ وہ نیزوں سے مارا جاتا ہے، یہ فتووں سے مارا جاتا ہے، یہ تلواروں سے مارا جاتا ہے، یہ تانوں سے مارا جاتا ہے۔ عزیزان محترم کا یہ جملہ دشمن کے ذہنوں پہ وہ بھی سوار رہتا ہے، دشمن کے ذہنوں پہ یہ بھی سوار رہتا ہے، دشمن کے ذہنوں پہ وہ بھی سوار رہتا ہے، دشمن کے ذہنوں پہ یہ بھی سوار رہتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ دشمن جل جل کر مر جاتا ہے، یہ مر مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ سلامت حیدری۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، جل جل کے مر جاتا ہے، جل جل کر مر جاتا ہے، مر جاتا ہے، یہ مر مر۔ ہاں عزیزان محترم، بات میری وہی ہے، کہا جاتا ہے ہر وقت علی علی، یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ بڑے پیار سے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ شیعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اب جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے وہ بولے، باقیوں کو چھوڑیے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہمارا عقیدہ، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، شیعوں کا عقیدہ سنو۔ شیعوں کے نزدیک سب سے بڑا اللہ ہے، واہ 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 واہ، اللہ کے بعد سب سے بڑا محمد ہے۔ واہ 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 واہ، جاگنا بہت عظیم جملہ دینے لگا ہوں۔ سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا محمد ہے۔ آپ پاوے اور کافر، آج میں پاوے سبدہ بیمار، ان دونوں بڑوں کے بعد، اللہ اور محمد کے بعد، آدم ہو یا عیسیٰ، سب کا مولا علی ہے۔
वाह वाह सबका मौला अली सबका मौला अली है। बात मैंने मिंबर पे की है, दलील मिंबर पे दे के जाऊंगा, परेशान नहीं होना। अजीज़ान मोहतरम, अंबिया कितने हैं? 1,24,000। वाह वाह फिर उनमें से 313 रसूल हैं वाह वाह जिनके बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, तिलका रसूलन फज़्ज़लनाहु अला बाज़िन अला बाज़, वाह वाह कि हमने बाद रसूलों को बाद रसूलों से अफजल बनाया है। इसका मतलब है एक जैसे कहने वालों, अल्लाह के बनाए हुए नबी बराबर नहीं है। तिलका रसूल कुरान की आयत है यार। 1,24,000 अंबिया हैं, फिर उनमें से 313 रसूल हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह फिर 5 उलुल अज़म हैं। ये गुफ्तगू फिर कभी कि नबी किसे कहते हैं, अगर आपने फिर मुझे बुलाने की गलती कर ली। 1,24,000 अंबिया हैं, यानी नबी किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं, ये बाद की बात है, बस यूं करूंगा आपको समझ आ जाएगी। जो नबी को सुने उसे जो फरिश्ते को सुने उसे नबी कहते हैं। तो जो फरिश्ते को सुने उसे नबी कहते हैं, जो फरिश्ते को देखे उसे रसूल कहते हैं, और जिसका दर्जी बन गया है उसे बतूल कहते हैं। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा मजमा, इतना अजीम जुमला कह गया मैं। 1.25 लाख नबी, फिर उनमें से 313 रसूल हैं, फिर 5 उलुल अज़म हैं। अब मैं अपना अकीदा बयान करने लगा हूँ। 1,24,000 अंबिया हैं, फिर उनमें से 313 रसूल हैं, और फिर उन 313 रसूलों में से 5 उलुल अज़म हैं, और 5 उलुल अज़म में से एक खातमुन नबिय्यीन है, एक खातमुन नबिय्यीन है, एक खातमुन नबिय्यीन है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 1.25 लाख नबियों की ये हिम्मत नहीं है, ये ताकत नहीं है वो ये कह सके हम 313 रसूलों जैसे, और 313 रसूलों की ये पावर नहीं है वो ये कह सके हम 5 उलुल अज़मों जैसे, और 5 उलुल अज़मों की ये ताकत नहीं है वो ये हिम्मत नहीं है वो कह सके हम ज़हरा के बाबा मुस्तफ़ा जैसे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम, इसीलिए लोग हमें काफिर कहते हैं। यानी 1.25 लाख नबी जिस जैसे न हो उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, और जो बिल्कुल मोहम्मद जैसा हो उसे अली मुर्तज़ा कहते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। बस एक जुमला और, एक या 2 जुमले, अगर आपने मुझे बर्दाश्त कर लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, यानी जो बिल्कुल मोहम्मद जैसा। कहाँ लिखा है जी? सुन्नियों की बुखारी में, शियों की कुतुब में? अरे नहीं, मैट्रिक की इस्लामियत की किताब है जो हर कोई पढ़ता है, उसमें लिखा है कि अली मोहम्मद जैसा है, अली मोहम्मद जैसा है, अली मोहम्मद जैसा है। कैसे भाई? वाक़या लिखा हुआ है ना कि जब नबी ने भाई भाई बनाया था, भाई भाई बनाया था तो क्या कहा था कि अबू बकर उमर का भाई है क्योंकि अबू बकर उमर जैसा है, अब्दुल रहमान उस्मान का भाई है क्योंकि अब्दुल रहमान उस्मान जैसा है, अबू ज़र सलेमान का भाई है क्योंकि अबू ज़र सलेमान जैसा है, और या अली तुम मेरा भाई है इसलिए कि अली मोहम्मद जैसा। वाह 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 अली मोहम्मद जैसा है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा पहला जुमला सुना था ना कि जो मट्टी को हाथों में ले आदम बना दे उसे अली कहते। इसी वजह से लोग कहते हैं कि ये अली को बढ़ा देते हैं, नबियों से बढ़ा देते हैं। मसला ये है कि आपने नबी सुना है उनसे, अली सुना है हमसे। आपको तो लगेगा कि अली को बढ़ा रहे हैं। आपको बताऊं इमाम की पावर क्या होती है? वाह वाह इमाम किसे कहते हैं? वाह वाह सुभान अल्लाह। पूछा गया मौला इमाम किसे कहते हैं? जो बारीक जुमले सुनने के आदि हैं उनके लिए जुमला कहने लगा हूं। मौला इमाम किसे कहते हैं? मौला फरमाते हैं काफ और नून मिल जाए तो बनता है कुन, और जिसका कुन पे कब्जा हो उसे इमाम कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। काफ और नून, सलामत रहे। जिसका कुन पे कब्जा हो उसे इमाम कहते हैं,
आप नहीं समझे, एक वाकया सुना देता हूँ कि मौला मूसा काजिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह। तो जो रखिएगा, मौला मूसा काजिम मतवक्कल के दरबार में हैं। अब मतवक्कल ने प्लान बनाया हुआ था कि इमाम के साथ नाउजुबिल्लाह मजाक करना है। जादूगरों को बुलाया हुआ था। जादूगरों ने इमाम के आगे से प्लेट उठाने की कोशिश की। लोग लिखते हैं कि उठा ली थी। अरे नहीं, शियों के नज़दीक जिस पे जादू का असर चल जाए, शिया उसे ना नबी मानते हैं ना इमाम मानते हैं। वाह 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 वाह। उन्होंने इमाम के गुलाम के आगे से प्लेट उठाई। अब गुलाम ने इमाम की तरफ देखा, इमाम ने सामने कालीन पे बने हुए शेर की तरफ देखा और कहा कुन असदन कुन असदन कुन असदन, शेर हो जा। वो कालीन था, कान नहीं लगता, सुन नहीं सकता। मौला ने कहा, उसने सुना, उसने सुना, उसने सुना, वो शेर बन गया, शेर बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि इमाम जिसे सुनवाना चाहे उसे सुनवा सकता है, जिसे बनाना चाहे उसे बना सकता है। जिसे सुनवाना चाहे उसे सुनवा सकता है, जिसे बनाना चाहे उसे बना सकता है। अब वो कालीन तो नहीं था, शेर था। शेर ने जादूगरों को खाना शुरू किया। पहले एक को खाया, फिर दूसरे को खाया, फिर तीसरे को खाया, फिर चौथे को खाया, फिर पांचवें को खाया। पांचों को खाकर मतवक्कल की तरफ बढ़ने लगा, मतवक्कल की तरफ बढ़ने लगा। मतवक्कल कांपने लगा, मतवक्कल कांपने कहता, सरकार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। इमाम फरमाते इर्जियो इला शक्ल असल, अपनी असल शक्ल में वापस बन जा। वो वापस कालीन बन गया, वो वापस कालीन बन गया। पूछने वाले ने पूछा, मौला ये बनाना क्या था, ये पलटाना क्या था? मौला कहते हैं बनाना खल्क है, पलटाना अमर है। तो पता चला जिसका खल्क पे भी कब्जा हो, जिसका अमर पे भी कब्जा हो, उसे इमाम के खैबर खंदक नहीं है यार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खैबर में कौन था? नबी के बिस्तर पे कौन लेटा था? खैबर का दरवाजा किसने कमा के सुटिया? वाह 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 वाह। ये सारा कुछ आप जानते हैं, बात को आगे बढ़ना चाहिए। बनाना खल्क है, पलटाना अमर है। और ये बात है मेरे, खल्क तकदीर के माता है और तकदीर अमर के माता है। वाह वाह वाह। और अमर उलल अमर के माता है। वाह 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 वाह। आप नहीं समझे, मैं आपको समझा देता हूँ। राहब आया था ना, मतलब बेटे चाहिए, तो रसूल अल्लाह ने हुसैन की पहचान करवाने के लिए क्या कहा था? तकदीर में नहीं। तकदीर में नहीं है। मायूस होके आया मौला हुसैन के पास। मौला हुसैन ने कहा, राहब क्या हुआ? कहता, सरकार बेटे लेने आया था। कहा, तकदीर में नहीं। हुसैन कहते हैं, हुसैन के दर से आज तक कोई खाली नहीं गया। राहब एक बेटा पहलू में था। वाह 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 वाह। राहब दो बेटे। ऐसे ही मौला ने 7 बेटे अता कर दिए। जब 7 बेटे अता किए ना, तो राहब कहता है, मौला बस कीजिए, मौला बस कीजिए, मौला बस कीजिए। हुसैन कहते हैं कि हुसैन के बहरे करम में सवाल का पत्थर फेंक के, इसमें तलातुम पैदा करके झोली इतनी छोटी कि 7 बेटों से भर गई। आज अगर तू खामोश रहता तो क़यामत वाले दिन तेरी औलाद एक तरफ होती, औलाद आदम दूसरी तरफ होती, तेरी औलाद एक तरफ होती, औलाद आदम दूसरी तरफ होती। वो अकल के अंदर जरा हया करो। और जिस अली के बेटे की अता औलाद आदम में शामिल नहीं, वो अली औलाद आदम में कैसे शुमार हो गए? अरे वो अली औलाद आदम में कैसे? वाह वाह। यानी जिसका कौन पे कब्जा हो। वाह वाह वाह। ये बता रहा हूँ अजीज़ान मोहतरम। चलिए एक आखिरी जुमला, खुदा का सम आखिरी जुमला, और एक जुमला मुसाहिब का, उसके बाद किबला के हवाले में बात करने लगा। मौला अली के सामने एक प्लानिंग के तहत एक नकली जनाजा बनाया गया। एक बंदे को कहा, भाई तुम एक्टिंग करो मरने की। अली को कहेंगे जनाजा पढ़ा, अली जनाजा शुरू करेंगे तो हम कहेंगे कि तुम उठ जाओ, तो तुम उठोगे तो फिर हम अली को कहेंगे तू तो आसमान के रास्ते जानता है। प्लानिंग के तहत मौला अली को बुलाया गया। बंदा पीछे लेटा, मराओ। मौला मुसल्ला इमामत पे आए। अब जिन्होंने जुमला समझ आए वो बोले। अली मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ जी पढ़ाऊँ जनाजा। तुम पता है कि जनाजा पढ़ाऊँ तो पहले इजाज़त लेगी। वाह वाह। सरकार फरमाते हैं, ओए एदा कोई प्यो भी है? कहता है, जी मैं, इजाज़त है? इजाज़त है। जुमला अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो, मर गया है
कहता मर गया है, मौला फरमाते हैं अब मर गया है। हाय हाय क्या बात है यार, क्या बात है इन हाथों की। फरमाया अब मर गया है। मौला किताबें लिखती हैं कि मौला ने अल्लाह अकबर कहा, जनाजा पढ़ाए बगैर ही चल दिए। लोगों ने पीछे बंदे को हिलाया, बंदा वाकई मर गया, बंदा वाकई मर गया, बंदा नहीं हिला। अब लोग अली के पीछे, या अली बंदा तो वाकई मर गया, बंदा तो वाकई मर गया, इसे जिंदा कीजिए। मौला अली गुस्से में आके कहते हैं, जलाल में आके कहते हैं, वो अली को आजमाने आए थे। क़यामत तक हर कोई मरता है, बदन मरता है, रूह जिंदा रहती है, जिस्म मरता है, रूह जिंदा रहती है। अली को आजमाने आए थे, इसका बदन नहीं मरा, इसकी रूह मर गई है, इसकी रूह मर गई है। क़यामत वाले दिन हर कोई उठेगा, ये फिर भी नहीं उठेगा। क्यों? इसे अल्लाह ने नहीं, इसे अली ने मारा। ऐसा नहीं सीने की पूरी कुव्वत से बोले हैदर हैदर हैदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Dam ardam saya bir sabda lali kalanda. बस नौकरी तमाम करूँ। अजमत भी बड़ी है तो मुसीबत भी बड़ी है। बुजुर्ग जाकर फरमाते हैं कि मुसलमानों की 2 ईदें हैं, ज़ैनब की दोनों ईदें गुफा खा गया। मौला तेरी हाय कबूल करे। कोशिश किया करो कि मुसाहिब गरीब बन के सुना कर। मेरे छठे बादशाह मुसाहिब पढ़ रहे थे, एक आदमी मुंह पे रुमाल रख के रो रहा था। इमाम ने मिंबर छोड़ा, उससे रुमाल लिया और इमाम रो के कहते हैं ऐसे क्यों रो रहा है? कहता है मौला कैसे रो? मौला रो के कहते हैं ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। अदादारों, आप रो रहे हैं, कुछ देर के बाद मजलिस तमाम हो जाएगी, आपके लिए न्याज का एहतमाम होगा, आपके लिए पानी की सबील होगी, आप सब अपने घरों को चले जाएंगे। आपको भूल जाएगा कि कुछ देर पहले मैं रो रहा था, कुछ देर पहले मैं चीख रहा था। मुझे इज़्ज़त अली की कसम है, आपके आंसुओं का मरहम लेके जनाब ज़हरा मजलिस से सीधा हुसैन की जरी पे जाती है और जाके कहती है उठ हुसैन मैं तेरे ज़ख्मों का मरहम लाई हूँ, उठ हुसैन मैं तेरे लिए आंसुओं का मरहम लाई हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ादारो हुसैन के ज़ख्मों पे आंसुओं का मरहम लगाती है ज़ैनब और सारे ज़ख्म भर जाते हैं। 2 ज़ख्म ऐसे हैं जो कभी नहीं भरते। जानते हो वो ज़ख्म कौन से हैं? एक ज़ख्म असगर के तीर का है, दूसरा ज़ख्म अकबर की बर्छी का है। मौला तेरा मातम कबूल करे। दूसरा ज़ख्म अकबर की बर्छी का है। बस सबब पैदा करूंगा, किस्मत वाले हैं वो आंसू जो हुसैन के ज़ख्मों का मरहम बने। आज़ादारो, जब करबला से, आखिरी जुमला है, जब करबला से लुटा हुआ काफिला कूफे के सदर दरवाजे पे पहुंचा ना, तो सदर दरवाजे पे एक सिपाही खड़ा था। दौड़ता हुआ इमाम सज्जाद के पास आया और रो के कहता है कि आपसे पहले भी एक हाशमी को यहाँ से गुजारा गया था, उसे भी कैद करके लाए थे, लेकिन वो तो इमाम भी नहीं था, तू तो इमाम भी है। उसकी आंखों में रौब था, तेरी आंखों में आंसू है। इमाम रो के कहते हैं वो इमाम नहीं था, मगर उसके साथ ज़ैनब के बाल खुले नहीं थे और जिसके घर से मेरा बाबा वाक़ई पीना था और मेरे बगैर, मेरे साथ बगैर चादर की आई है। अल्लाह